Hello and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़ख्र आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स our continued coverage of the HBL PSL season 9 and what a fantastic thriller we have just witnessed at the National Stadium in Karachi. Just absolutely spectacular. We're going to talk about it, but joining me in the Pavilion, I've got four former captains of Pakistan, four outstanding individuals who served the game of cricket really well and who have served Pakistan really well. First up, I've got the opening batsman, part-time leg spinner, Azhar Ali. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Azhar. Walaikum assalam. Thank you. Next up, ladies and gentlemen, I have got the Muakkale cricket, Asab-e Shikast, Pire PSL, Janab Mohammad Hafiz Saab. Assalamu alaikum and welcome. Hafiz, good to have you here. Thank you. And next up, the most successful test captain in Pakistan's test cricket history, I've got the Mr. Dependable, Misbah-ul-Haq. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Misbah. जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब. और दोस्तों, finally, I have got the man himself. That big smile that I can see in the studio is lighting up this whole place. The very proud president of the Karachi Kings, the legend, the Sultan of Swing and the swinging Sultan, Wasim Akram. Good evening, assalamu alaikum and welcome, Wasim. Yay. Good evening and assalamu alaikum ji everyone. Wasim, Yay. खुश तो बहुत हो रहे होगे तुम. Who खुश? क्या मतलब हो रहे होगे? I am happy. I mean, Karachiite is happy. I know. What a game. What a game of cricket. Good game. Just spectacular stuff here. आइए जरा मैच समरी पे नजर डालते हैं. Let's take a look at this match summary. This is how it went down. शान मसूद ने आज टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. It was quite a brave move, but it somehow played out in favor of the Kings in the end. लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 177 for 5 किए दोस्तों. इसमें आप देख सकते हैं कि शफीक देर 55 really well played by him. Fakhr there, thank you. Finally get to see him to express himself. 54. Vize there coming into form at the bottom, and Sikandar Raza showing what he can do with the bat. He just wasn't given enough opportunities in this HBL PSL. Zaid there picking up 2 for 27. Anwar Ali 1 for 36 and Wazar Rahmani 1 for 40. In the end, it was 177 for 5. एक स्टेज पे लग रहा था कि 160 भी करना मुश्किल होगा कलंदर्स के लिए. But then there was some dubious bowling that came down their way that made sure that they got across 177 for 5. In reply, it was a last ball thriller that has just gone down. Now, great to see Vince in the runs and Cypher there. Now, Vince came up because Shan Masood heard the pavilion. I hope that's what happened here, and decided to go one down the order, giving Vince enough time to express himself, and he surely did. With that 42 of 27 delivery, Cypher 36 of 33, Niazi there 33, and that was a very important innings by the young Niazi. And then Malik, the experienced veteran finisher, finishing up for Karachi Kings in a victory. Tayyab 2 for 23, Raza 1 for 23, Shaheen 1 for 37, and Zaman, who bowled the penultimate delivery and gave away a boundary, 1 for 41. Karachi Kings win this one by 3 wickets, and a big congratulations to Karachi fans everywhere in the world. इसके साथ ही आइए जरा पॉइंट टेबल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं. सूरत हाल कैसी है जमाया? Here you go. Here's the points table. Multan Sultans qualified. Peshawar Zalmi qualified. Now Islamabad United sitting at number 3 with their 9 points and 1 game to go. Quetta Gladiators with 2 games to go with 9 points at number 4. But Karachi Kings have kept themselves alive tonight. Yes. Now they are standing at 8 points with 1 game to go. Qalandars, we know, are at the bottom of the table. They're not going to go anywhere. But here's the deal. Now Karachi Kings is looking at that table, hoping that their next game they score another victory, taking themselves to the 10 points. And somehow either Islamabad United or Quetta Gladiators, one of those teams remains at 9 points. Now Islamabad United have 1 game, and that too against the table toppers Multan Sultans. This has now become a very significant position on this points table. Let me start off with you, Wasim. Yes. You laga match, it was a thriller, no question about it. But थोड़ा सा यूं भी लग रहा था कि दोनों टीमें बहुत जोर लगा रही हैं मैच हारने के लिए. It was a good game of cricket. Yeah. We enjoyed it. Last 5 overs, we were glued to TV, weren't even talking. Yep. Credit to Shoaib Malik. Experience उसने दिखाया, उसने बताया अपने इंटरव्यू में कि be calm जब ऐसी situation आए, stay focused. And I'm good to see Irfan Niazi. I mean, he got man of the match and rightly so, 35 of 16. But उसने reason
मुझे इसलिए खुशी हो रही है उस पर कि एक तो प्रॉपर बैटिंग की आज, बिकॉज फर्स्ट क्लास से रन्स करके आ रहा है, 800 रन की ऑलमोस्ट 70 के एवरेज से। सो रेड बॉल क्रिकेट का हम बार बार कहते हैं, उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो इन दी एंड आई सपोज शोएब मलिक केप्ट हिज काम, और लास्ट बॉल पे जब 3 चाहिए हो बड़ा मुश्किल होता है चौका मारना, और वो एक्सपीरियंस ही कर सकता है। काफ़ी गलतियाँ हुई लाहौर से भी। शाहीन की बात करेंगे, पहले 2 में 13 दिया, अगले 2 में 27 रन दिए आके। उसको ये आगे फ्यूचर में भी देखना पड़ेगा कि जब बिल्कुल सही है, जब बैट्समैन लैप शॉट करते हैं तो आपने फील्डर पीछे रखना है। एब्सोल्युटली। हफीज, ये जो आखिरी बॉल की बात कर रहे हैं वसीम, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि सारे जो बाउंड्री के फील्डर्स थे वो ऑन साइड पे थे, सारे ऑफ साइड के फील्डर जो थे वो सर्कल के अंदर थे, और फिर उन्होंने एक फुल टॉस करा दी वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जिस पे चौका खा लिया। ये कोई स्ट्रेटजी थी, कोई हम दिखाएंगे कि हमने फील्ड सारी वहां पे रखी हुई है और गेंद हम इधर करा देंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाएगा बैट्समैन? क्या मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर हम देखें इस बॉल करने से पहले शाहीन और जमान की आपस में कोई बात हुई, कुछ ना कुछ बात हुई जिसमें एक दूसरे को क्लैरिटी दी, मे बी कॉन्फिडेंस दिया गया। जो भी वो करना चाह रहे थे शाहीन ने शायद उनको बैक किया हो, लेकिन जो एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉल था वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि जब आप फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, लाइक पूरी लेग स्टम्प आप पैक करते हैं, उसकी क्या रीज़न है कि रिवर्स हो रहा है बॉल, आप बॉल अंदर टांगों के अंदर बॉल करेंगे यॉर्कर, विच इज़ हिज स्ट्रेंथ। एक सडन शायद उन्होंने ब्लफ किया, मे बी उन्होंने कुछ अपना माइंड चेंज किया और एक ऐसा बॉल किया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ज़मान से। लेकिन जब आपकी पूरा सीज़न चल रहा होता है, ओवरऑल डेथ ओवर के अंदर दीज गाय यूज्ड टू विन मैचेस फॉर लाहौर के अंदर, बट नाउ डेज शाहीन के लिए मेरी वरीज़ हैं कि वो मुसलसल लास्ट 2 ओवर्स में मैच को अपने रन्स बहुत ज़्यादा देते हैं और मैच एकदम से दूसरी तरफ चला जाता है, मोमेंटम छोड़ देते। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी तरफ जाऊँ ज़मान की तरफ, तो पूरा टूर्नामेंट ये देखें, ये दोनों पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं एंड दे आर स्पेशलिस्ट इन T20, लेकिन ज़मान की जो इस पूरे PSL में ओवरऑल इकॉनमी है वो 10+ है, नियरली 11 के पास है। तो मुझे ये लगता है कि ये इनकी बैड फॉर्म जो है, ये एक तो ऑब्वियसली लाहौर को तो नुकसान पहुँचे ही है, लेकिन अल्लाह ना करे कि इसके साथ पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचे। अब क्या होगा, अब दुनिया की जो बाकी टीमें हैं उनको पता है कि ज़मान क्या बॉलिंग करता है आखिरी 2 ओवरों में, मुझे करता है यहाँ स्लो बॉल करता है या अच्छा यॉर्कर करता है। देयर शुड बी अ प्लान C एज वेल, कि अगर ये 2 बॉलों के अलावा कोई और बॉल भी उसको सीखना पड़ेगा, उसको अपने बाउंसर पे काम करना पड़ेगा। ही इज गॉट स्किटी बाउंसर विद दैट स्लिंगी एक्शन, बट वो हमने देखा नहीं है। विकेट साइड स्लो बॉल पे शॉर्ट बॉल मुश्किल है खेलना, स्पेशली ऐसी जो आज कराची की पिच थी। या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मिसबा बड़ी ज़बरदस्त रही, शान मसूद 1 डाउन आए तो उन्होंने बिल्कुल जेम्स विंस को एक बिल्कुल ही अलग ही प्लेयर बना दिया आज, सिर्फ उनको ऊपर भेज के नई गेंद को फेस करने के लिए, और इसके नतीजे में आज पावर प्ले में कराची किंग्स से कोई विकेट भी नहीं गिरी। जी बिल्कुल, आई थिंक जैसे हम बात कर रहे थे स्लो पिच है, यहाँ पे पावर प्ले को यूटिलाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। पहले 6 ओवर्स में 58 रन फॉर नन, आई थिंक यहाँ से एक बेस सेट हुई और उसने फिर अलाउ किया इनको कि मैच में एंड तक रहे गो, कि उसके बाद बड़ा मुश्किल था रन्स करना। बट आई थिंक वो जो एक स्टार्ट था, कहीं ना कहीं एक ब्रीदर मिला आपके मिडिल ऑर्डर को कि ठीक है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। जो आस्किंग रेट था विद इन कंट्रोल रहा, मैक्सिमम 11 साढ़े 11 तक गया। वरना नॉर्मली क्या होता है जब आपको पावर प्ले में स्टार्ट नहीं मिलता तो आस्किंग रेट एक्चुअली जब आप 14वें या 15वें ओवर पे जाते हैं तो वो 15 में पहुंच जाता है, देन इट इज़ बियॉन्ड योर रीच। सो आई थिंक कि यही फ़र्क होता है। यहाँ स्लो पिचेस पे फ्रीली खेलते हैं, पेस को यूटिलाइज़ करते हैं, जितने भी बाहर के प्लेयर आते हैं उनको मज़ा आता है यहाँ पे ऐसी स्लो पिचेस पे। नए बॉल थोड़ा अच्छा बल्ले पे आता है और उसका मेरे ख्याल में बेहतर यूटिलाइजेशन की। इवन शान भी राइट फ्रॉम द वर्ड गो जब आज आए हैं तो पॉजिटिव थे, रनिंग बड़ी क्विक रनिंग की है उन्होंने, रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी बाउंड्रीज थी। तो आई थॉट कि जो जीतना चाह रहे थे मैच, बॉडी लैंग्वेज उनकी उस तरह हेल्प देम। या बिल्कुल, शान मसूद के लिए अजहर आपने देखा आज इनकी भी बेसिकली 1 डाउन आके इनकी भी थोड़ी सी बैटिंग में तब्दीली नजर आ रही थी। आज बड़े पॉजिटिव और इंटेंट नजर आ रही थी, इनकी इंटेंट भी नजर आ रही थी। डॉट बॉल्स की परसेंटेज भी ऑब्वियसली कम हुई होगी बिकॉज सर्कल वाज ओपन। और अच्छी चीज़ ये थी आज जिसको कहते हैं ना टेंटेटिव नहीं थे, आज आके अपनी जगह रैम शॉट भी खेले, फिर मिड ऑफ के ऊपर से भी खेला शॉट। तो आई थिंक ऑल इन ऑल ही लुक मोर कंफर्टेबल। ऑब्वियसली एक मोमेंटम मिला हुआ था, उसको कैरी ऑन किया और एक एक अच्छी पार्टनरशिप मिडल में। ये शॉट ज़रूर थोड़ा रैश शॉट था, लेकिन 15 बॉलों में 24 बनाए, जो कि एक मोमेंटम को कैरी ऑन किया इंडियन। यहाँ पे और बेहतर कर सकते थे, लेकिन एटलीस्ट
you know, he wasn't like damaging the cause of the team today, because as a batsman you can easily do that कि अगर आप थोड़े से बॉल भी ज़्यादा खेल जाएं। एक अच्छा डिसीजन कप्तान का या मैनेजमेंट का विंस को प्रमोट करना और इनका नंबर 3 पे आना। बेसिकली इन दोनों प्लेयर्स ने आपको 42 और 24 रन जो है तकरीबन 66 रन जो है उन्होंने आपको दे दिए। तो आप ये सोचें कि एक छोटा सा डिसीजन अगर आप राइटली एडजस्ट करते हैं तो कितना जो है फ्रूटफुल होते हैं। पावर प्ले बस हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि इस वेन्यू पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पावर प्ले में जो एक्स्ट्रा इन्होंने 14 रन एक्स्ट्रा किए दूसरी टीम से, दैट गेव देम द कुशन कि मिडिल पीरियड थोड़ा ख़राब भी किया है, लेकिन इनके पास एंड तक 10-11 रन ओवर चाहिए था जो इन दी एंड हो गया, जो कि मैं समझता हूँ इस पिच पे चेज़ नहीं होना चाहिए था। लाहौर शुड बी डिसअपॉइंटेड कि इस पिच के ऊपर गेंद इतना अच्छा बाउंस नहीं था, रिवर्स स्विंग भी आपको मिल रहा था, आपके पास बॉलर भी मौजूद थे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे प्लान्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं डिफेंड कर सके। वसीम, आप शुरू में एक बात कर रहे थे, मैंने कहा विल टॉक अबाउट इट नाउ। लेट्स गेट डाउन टू शाहीन आफरीदी, बिकॉज एज अ बॉलर ही इज अ स्टार बॉलर अराउंड द वर्ल्ड, ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार बॉलर। हमारे पाकिस्तान के लिए ही इज अ स्टार बॉलर, बट इट सीम्स लाइक ही इज मेकिंग some basic mistakes over and over. Is that a confusion between the captain's hat and a bowler's hat that he's switching between both? I don't know. Could be. He's a new captain. थोड़ा time लगता है settle होने में as a captain, because there are lots of jobs as a skipper you got to do apart from focusing on your own batting, on your own bit, bowling, and then of course field setting, then playing 11, then press conferences. Lots happening with captain nowadays with cricket, and I think he'll get used to it. But as a bowler, I can talk about कि जब आपको पहली उसने चौका मारा इरफान ने, फाइन लेग आपकी ऊपर है, तो आप उस फाइन लेग को पीछे ले जाओ, वही बॉल करो दोबारा। ये तो अभी नया बॉल दिखा रहे हैं। ये जरा सारे का सारी उनके ओवर देखें आप, यू कैन कमेंट ऑन दिस। यहाँ पे तो ठीक बॉल ही कर रहा था, स्विंग तो मिलना नहीं था, यहाँ पे वेरिएशन ही चल रही थी। और इसको मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जब तक आप बेटा आउट स्विंग नहीं सीखोगे राइट हैंड को अराउंड ओवर द विकेट, स्पेशली किसी भी क्रिकेट में, वो फिर आप वन डायमेंशनल बॉलर बन जाते हो। उसको पता है कि इसका बॉल अंदर ही आना है, इसने लेग ब्रेक करना है, मुझे लेग कटर करना है, स्लो बॉल। ये इसकी बात कर रहे हैं। ये पहला लगा चौका, फाइन लेग अंदर थी, ये दूसरा लगा, और फिर फाइन लेग अंदर थी। और पहले के बाद अब ले लो पीछे, उसको मारने दो, उसको कहीं और मारने दो, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और उसके बाद इरफान केम बैक वेल, बट आई थिंक इट वाज टू लेट। जिस बॉल पे आउट हुए हैं, ये जो सबसे बड़ा मसला है बॉलर्स का हमारे, और शाहीन को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई हर पिच डिफरेंट है। आज की पिच पे आपको फुलर बॉल नहीं करना था। जिस बॉल पे ये आउट हुआ है, ये लेंथ थी आपकी। आप नए बॉल से भी, नए बॉल पे भी इस पिच पे मेरा नहीं ख्याल कि फुलर लेंथ कोई बेस्ट थी। थोड़ा वो जो 6 मीटर की लेंथ थी, अगर वहाँ पे करते तो पिच को करने देते जो भी था। बिल्कुल एंड पे भी आप देख लें, यॉर्कर्स पे गए हैं, और जो उस लेंथ को हिट करने गए वो कम पेस वाले बॉलर करने गए और उनको रन्स हो गए। ऐसी पिच पे और ऐसी स्क्वायर पे जब आप बॉल करते हो लेफ्ट हैंडर, शाहीन भी यही मेरे जैसे ये लेफ्ट हैंड, आप अंदर जो लाते हो वो अंदर नहीं आना, बिकॉज देयर इज नथिंग इन द एयर, नथिंग ऑन द स्क्वायर। तो तब मैं जब कहता हूँ कि आपको फिर ये क्रॉस जाना पड़ेगा राइट हैंड से, मिडल से, ऑफ स्टंप से नहीं। ऑफ स्टंप से करोगे तो वो उसको रूम मिल जाएगा, आपको ये मिडल से बाहर निकालना है बॉल। वो ये नहीं सीख रहा, वो सीख रहा है बट उसको टाइम लगेगा, उसके लिए उसको थोड़ी रेड बॉल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। वसीम भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मुझे लगता है कि आप जिद नहीं, आप क्यों, आपको पिच नज़र आ रहा है यार, मैं बैट्समैन से दूर अगर स्टंप्स में मारूंगा ना तो कोई शॉट नहीं लगनी। पिच ट्रू है नहीं, लो है, गेंद रुक भी रहा है, अजीब सा गेंद हो रहा है, बल्ले पे ही नहीं आ रहा। इस पे आप जो बात कर रहे हैं तो इस पे हम ले लेते हैं जो यंग डेब्यूटेंट है तैयब अब्बास। मैं कहता हूं उन्होंने ज्यादा बेहतर बॉलिंग की है इस पिच की मद्देनजर रखते हुए। दूर बॉल किया है, उनका बॉल नीचे भी रह रहा था, मुश्किल हो रही थी, कोई ऐसे नहीं था। 129 128 पे बॉल किए, सिर्फ किया क्या है कि दूर दूर मारी जो खुद ब खुद बॉल नीचे रह रहा है, बल्ले पे नहीं आ रहा, और उसी में 2 आउट भी कर गए। तो पिच के ये देखें, ये सिंपल बॉलिंग थी जो आपने करनी। इन्होंने भी जो बॉल आगे करने की कोशिश की है डिफरेंट, उस पे इनको भी रन हुए, वरना ये देख लें जो उन्होंने दूर दूर बॉल किया, उस लेंथ को हिट किया, बहुत मुश्किल था आपके लिए खेलना। ये जो गंदा गेंद किया उसी पे रन हुए। डेविड वीजे जो कि बहुत सीनियर कंपेनियर इनके साथ खेलते हैं, वो नॉर्मली इन चीज़ों को जज करके या उसको नोटिस करके स्ट्रेट अवे इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। शायद उन्होंने भी पहुंचाई, लेकिन किसी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, विच इज़ कंसर्न टू मी कि अगर आखिरी 5 ओवर में 45 रन आपके मेन बॉलर्स को हो जाएं, या 4 ओवर में 45 या 47 रन वो हो जाएं, इससे बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और शाहीन को ये भी बताना पड़ेगा कि अभी वो ऑलराउंडर नहीं बना।
ये कौन बताएगा? अब आई डोंट नो, पाकिस्तान टीम में जो थिंक टैंक हैं, जो लाहौर में थिंक टैंक हैं, बिकॉज आपके पास दुनिया के बेहतरीन हिटर हैं आपकी टीम में, जिनकी काम ही है, जिनकी जॉब ही है कि लास्ट 3 ओवरों में बैटिंग कैसे करनी है। विजे एंड सिकंदर रजा, पूरी दुनिया में पिछले 2 साल से सिकंदर रजा इंटरनेशनल क्रिकेट में काबू ही नहीं आया हुआ है, बिल्कुल। और उससे पहले आ गया, फिर एक स्कोर 3 गेंदों पे करके आउट हो गया। और दोनों ने आके जो पार्टनरशिप की है, एक ने 22 किया 16 गेंदों पे, एक ने 24 किया है, विजे ने 9 गेंदों पे, तो ये पहुंचे हैं 177 तक। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने आना है एज अ कैप्टन कि मैंने जाना ही जाना है। यू हैव टू सी सिचुएशन क्या है कि मेरे से बेहतर हिटर हैं, मेरे से बेहतर एक्सपीरियंस इस सिचुएशन के हैं, तो आप उनको भेजो। शायद ये 190 हो जाता। आपने प्रोएक्टिव होना है, ये कोई ज़रूरी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि भाई आपने यॉर्कर मारने हैं, तो आप फाइन, अगर आपको नज़र आ रहा है कि मेरे यॉर्कर अच्छे पड़ रहे हैं और फाइन लेग एक ही शॉट रह जाती है, तो आप स्ट्रेट अवे आप प्रोएक्टिव हों। आप अगर गेम को चेज कर रहे हैं कि यार 1 चौका या 2 लगेंगे, फिर मैं फील्डर पीछे करूँगा, तो इतनी देर में तो बस निकल जाती है, इतनी देर में तो आप पीछे रह जाते हैं। All right, folks, with that, we're going to take a break here in the pavilion, but when we come back, there's more about this game. Stay with us. Hello and welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स। Our continued coverage of the HPL PSL season 9, and we've just had a thrilling game in Karachi, where Karachi Kings clashed with Lahore Qalandars, and Karachi Kings winning this one and keeping their hopes alive in this HBL PSL 9. With me in the pavilion, I've got 4 fantastic minds of cricket. I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafiz, Misbah ul Haq, and the great Wasim Akram, who was also the president of the Karachi Kings, and a very happy one tonight. अब जरा बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स की. It was really delightful to see Fakhar Zaman in action, Azhar, today. आज उनका एक थोड़ी सी glimpses वापस नजर आनी शुरू हुई है फखर जमान को. बिल्कुल, आज जैसे सडनली इट लुक लाइक कि वो जैसे पिछले दो सालों उन्होंने परफॉर्म किया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे वो आज खेल रहे थे। स्ट्रेट अवे पहले बॉल पे उनको बाउंड्री मिली और उसके बाद ही नेवर लुक बैक। आई थिंक वाज अ वेरी की रन आउट इन द गेम जो वो हुए, न्याजी ने उनको किया। शॉट्स आज देख लें, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पूरा कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंस से खेले। और उसके बाद जो ये रोटेट कर रहे थे ना स्ट्राइक जिस कॉन्फिडेंस से, और ये वो सारे साइंस हैं जब ये बंदा शॉट्स खेलता है प्लेयर, तो इट मीन्स कि ही इज़ बैक इन कॉन्फिडेंस। टफ पिच था, इजी पिच नहीं था आज, बॉल बाउंस इतना अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन वी ऑल नो व्हेन फखर जमान गेट्स गोइंग वो किसी भी पिच पे परफॉर्म कर सकते हैं। और आई थिंक वो जो रन आउट था इनका होना, वो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। अदरवाइज जिस तरीके से वो जा रहे थे, प्रॉब्ली स्कोर 10 रन का ही फ़र्क पड़ता, लेकिन इन दी एंड 178 तो वो कर गए थे। लेकिन ही वाज लुकिंग वेरी डेंजरस। पार्टनरशिप जिस तरह अब्दुल्ला के साथ उन्होंने लगाई, रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, और फॉर्चुनेटली फॉर कराची कि वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एंड हफीज़ अब्दुल्ला शफीक, पहली बात तो ये है कि वो he should have been regularly in Karachi. That is very surprising कि I'm just surprised कि they did not play Abdullah Shafiq in the earlier games. आई थिंक एक गलती मुझे लगता है कि जो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए थी बहुत देर पहले, लेकिन इसमें अब मुझे जो दूसरी चीज़ है, अब्दुल्ला बहुत अच्छा खेला, उसका पहले ही हम बात कर चुके हैं कि इस टूर्नामेंट में वो मिसिंग लिंक था इनकी बैटिंग के अंदर, जिसने पिछले सीज़न में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। अब इस सीज़न में साहबजादा फरहान जो इनके लिए अच्छा कर रहे थे, उसके बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो ड्रॉप किए गए हैं, उनको रेस्ट करवाया गया है, ही इज़ इंजर्ड या व्हाट, कुछ नहीं पता। लेकिन ये देखिए ना, इस तरह के डिसीजन से आप प्लेयर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा शैटर्ड करते हैं कि एक बंदा फॉर्म में खेल रहा है, और ये इन पिचेस पे उन्होंने ज़्यादा रन्स किए हैं। अभी वो जो बेस्ट बैट्समैन बने हैं वो इन्हीं कराची की पिचेस के ऊपर खेल के बने हैं, तो जब वो यहाँ पे वापस आते हैं तो उनको मौका नहीं मिलता। तो दैट इज समवेयर आई थिंक मैनेजमेंट नोज बेटर। शायद होप को खिलाई जा रहे हैं, उसके 64 रन हैं, 116 का उसका स्ट्राइक रेट है। जो आपका इनफॉर्म सबसे ज़्यादा स्कोर करके बैठा हुआ वो बाहर हो गया। It just doesn't make it. But Abdullah Shafiq looked really good today. Very good. I mean, his shots that he played across everywhere. और ये लग रहा है कि वही जो मिसिंग लिंक था, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। कमेंट ऑन दिस प्लीज। देखिए, इज अ क्वालिटी प्लेयर, सबको पता है, टेक्निकली बड़ा साउंड है, उसकी जो शॉट सिलेक्शन है, एवरीथिंग इज़ गुड। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात करता हूँ कि देखें, वंस यू आर विद द टीम, यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आए हैं, वर्ल्ड कप में थे, यू आर प्लेइंग क्वालिटी बॉलर्स। इट मीन्स कि हर रोज़ आप नेट्स में भी अपने क्वालिटी बॉलर्स को खेल रहे हैं, पेसर्स को, स्पिनर्स को। आपकी क्वालिटी हमेशा बेहतर होगी उन प्लेयर्स से जो कि नॉर्मली डोमेस्टिक क्रिकेट में लेसर या वीकर बॉलर खेल रहे हैं। तो आई थिंक
और टेम्परामेंट भी आपका जो है वो हमेशा बेहतर होगा दूसरों से। आप इतनी टफ सीरीज़ खेल के आ रहे हैं तो ही शुड हैव बीन गिवन चांस। ठीक है, चौथे पे उन्होंने एक आधा मैच खेला, अच्छे भी लग रहे थे, कंटिन्यू करते उनसे और कम से कम कंटिन्यूटी होती तो मेरा ख्याल में ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंसेस देते थे। अब्दुल्ला के बारे में साहबजादा फरहान बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, यू नो, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बट आपका एक प्लेयर चलता आ रहा है, ठीक है, आप अब उसको ज़रूर साथ रखते साहबजादा को, उसने रन्स भी किए हैं, इधर भी उसने इज़ नॉट कि उसने स्कोर नहीं किया, लेकिन अब्दुल्ला इज़ अ क्वालिटी बैट्समैन कि वो हर कंडीशंस में आपको नज़र आता है, प्लेयर लगता है खेलते हुए। तो ऐसा प्लेयर मिस आउट करना ऑलमोस्ट ऑल द टूर्नामेंट, और उसका नंबर उसको ना मिला। आज नंबर 3 पे आए हैं, आपको बैटिंग डिफरेंट नज़र आई, उनको टाइम मिला है, थोड़ा सा सेट हुए, उसके बाद उन्होंने सारी यू नो एक्सलरेट किया इन दी एंड। तो आई थिंक ये डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है कि यार ऐसा प्लेयर बाहर बैठा रह गया। ये एब्सोल्युटली होगा। मिसबा, एक चीज़ मैं बोलूँ, डू यू थिंक कि शान मसूद यूटिलाइज हिज बॉलर्स knowing the condition, knowing जो माहौल हो रहा है, do you think कि Karachi Kings could have limited at least 30-40 runs in the end of this innings of Lahore Qalandars? बिल्कुल, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मलिक को आपने पहला ओवर कराया इस पिच पे, he should have bowled the third over also, और फिर उसके बाद फ़खर जमान ठीक है stayed there till 10th over। जैसे ही फ़खर आउट हुआ है, why you haven't introduced your left armer, एक लड़के को आपने खिलाया और वो अच्छा बॉलर है, उस टाइम पे आप उसको लेके आते तो हो सकता है एंड पे जो अनवर अली से एक ओवर आपको कराना पड़ा है या फास्ट बॉलर्स को उनको एक ओवर कम करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं विकेट के भी चांस थे। मुझे समझ नहीं आती कि एक बॉलर को खिलाना भी है और फिर उससे बॉलिंग कराने की हिम्मत भी नहीं, तो ये आप कोई उसके कॉन्फिडेंस के साथ आप बिल्कुल जो है ना, इससे ये लगता है कि आपने एक इमर्जिंग प्लेयर खिला तो लिया है जी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। नहीं, इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि इट मीन्स कि किसी और का डिसीजन था। जब ऐसा काम होता था इट मीन्स कि कप्तान नहीं चाह रहा था खिलाना और वो किसी और वजह से खेला है, तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं उसको बॉल। ठीक है, कप्तान नहीं था चाह रहा, अगर वो खेल भी गया तो फिर कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे कप्तान के ट्रूप्स हैं ना, कप्तान के बच्चे हैं, कप्तान के लड़के हैं, तो वो चीज़ फिर साइड पे हो जाती है। फिर आपको मौके की मुनासबत से आपको बॉलिंग उसको मिडल में बनती थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो तेज मारता है उसने बहुत तंग करना था इसमें। लेकिन जैसे मिसबा बात कर रहे हैं कि जहाँ पे 2 राइट हैंडेड इकट्ठे हो गए थे, वहाँ पे उनको जैसे जाहिद महमूद ने 4 ओवर में 27 रन की दिए हैं, तो क्यों ना कि आपको नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ पिच के अंदर है, तो आप अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर जो खेल रहे हैं उसको 1 ओवर दे के तो देखें, अगर वो अच्छा ना करे तो फिर आप डिसाइड करें। आपने वहाँ पे पोलार्ड को 1 ओवर कराया, 11 हो गया, तो उसको भी कराते तो हो सकता है विकेट टेकर होता। नेट में भी गेंद किया होगा पिछले कोई 2 महीने जी, बिकॉज़ इट लुक लाइक इट वाज लाइक उसने पहला बॉल जो किया है वो तीसरे मोहल्ले में गया है। I know it was very confusing to see that was happening. He was shocked. He was shocked himself probably. मैं कितना क्योंकि जो ब्लेसिंग मजरबानी यहाँ पे स्लो पिच पे जैसी बॉलिंग कर रहे थे तो उनके भी 4 ओवर मुझे नहीं लगता बनते थे। आज एक आधा ओवर आपके स्पिनर उनका कर जाते, अनवर ने 4 ओवर किया, अनवर का एक आधा ओवर वो स्पिनर बीच में कर जाते तो मुझे लगता है 10-15 रन का फ़र्क होना था। और वो एवरेज जो हम जो एक स्कोर कह रहे थे उससे ऊपर हुए हैं, और बड़ी बात है कि कराची ने वो जो स्कोर वैसे होना चाहिए था उससे ऊपर का स्कोर चेज़ किया, जो कि मुश्किल था यहाँ पे इस बॉलिंग के अगेंस्ट। या इट वाज जस्ट लुकिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। बीच में एक टाइम ऐसा आ गया था हफीज़ जहाँ पे लग रहा था कि कराची किंग्स माइट नॉट मेक इट अक्रॉस द लाइन। देखें, जब आपके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर मलिक की शक्ल में या पोलार्ड की शक्ल में मौजूद हो, देखें अभी तक आप खूबसूरती कराची की अगर टीम की जितनी भी उन्होंने मैचेस जीते हैं, आप देखें कि कंट्रोल किसने किया, एक्सपीरियंस ने। पोलार्ड ने 2 मैचेस के अंदर अपना वो स्टेडी शिप जो है उसको कंटिन्यू किया, एक मोमेंटम लेके चले, कंट्रोल किया पूरे प्रेशर को। आज के मैच के अंदर मलिक मेक श्योर कि वो अंदर रहेंगे एंड तक, एंड दैट्स व्हाट ही सेड इन इंटरव्यू आल्सो, कि वो ये चाहते हैं कि वो इस मैच को फिनिश करके दिखाएं। और मेरा ख्याल है कि एक कूल हेड, एक एक्सपीरियंस प्लेयर जिसको राइट सिचुएशन ऑफ द गेम को हैंडल करना आया, उसने अपने दूसरे यंगस्टर जो इरफान न्याजी की इनिंग्स है वो तो बहुत अच्छा खेले, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस मिला मलिक के साथ होने का या कंट्रोल अग्रेशन करने की एक पुश होती है जो मलिक ने उनको प्रोवाइड की, आई थिंक दैट वाज अ स्पेशल मोमेंट फॉर कराची किंग कि वो इस मुश्किल मैच को आसानी तो नहीं लेकिन इसको आसान किया उस पार्टनरशिप ने। अदरवाइज अगर वहाँ पे मलिक आउट हो जाते, जैसे पोलार्ड आउट हो गए थे, तो शायद ये जितने यंगस्टर बाद में आते, मां सदाकत सॉरी ये जो अल्फात मिनहाज जो हैं,
उनसे शायद वो प्रेशर हैंडल ना हो पाता उस स्टेज पे। तो मुझे लगता है ये वो जो पार्टनरशिप थी that was the deciding ताकत कौन sorry वो भी एक हैं क्रिकेटर है he is also क्या था मुझे रैंडम नहीं फातमन हाज भाई मैं आज कुछ नहीं बोलिया आज प्री मैच अजहर ने एक दफा सिकंदर मिर्जा बोला है जी जी रिकॉर्डिंग में आप YouTube पे सुन लीजिएगा अपने आप को आपने सिकंदर यार गलती हो जाती है सिकंदर ते खेल रहा सी ना ठीक है नमाज खेल रहा सी ना सदाकत खेल रहा नहीं लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें जो मलिक की इनिंग्स थी वो चाहे हमें बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट नजर नहीं आ रहा लेकिन वो जो उन्होंने उस वक्त कंट्रोल किया पूरे मैच को अपने ऊपर डाला और सबको कॉन्फिडेंस दिया वो इस मैच को लेके इंटरेस्टिंग मलिक जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मेरी और पोलार्ड की वसीम एयरपोर्ट पे बात हुई थी और हमने डिसाइड किया था एक मैच तुम जिताओगे एक मैच मैं जिताऊंगा तो एक पोलार्ड जितवा चुका है अब मैंने जितवा दिया अब अगला पोलार्ड की बारी है जितवाने की सो दिस इज इट्स गुड दैट काइंड ऑफ बॉन्ड इज बाकी टीम नु बीच पे भेज दो नहीं बाकी टीम को बीच में क्या बाकी टीमों के लिए हफीज है ना ठीक है उधर मैं मांग लूंगा किसी ने मैच नहीं जिताया ऑल क्रेडिट गोस टू हफीज ये तो हम बातें करते रहेंगे कि फलां ने ये कर दिया फलां ये कर दिया पाईजान जो हफीज ने कर दिया ना जो मैंने प्रेडिक्शन की है ना बस सारा मसला वो है एक हफीज सब पे भारी एक हफीज सब पे भारी विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक हियर एट द पवेलियन विल सी यू ऑन द अदर साइड Hello and welcome back to the Pavilion. मैं फ़खर आलम आप देख रहे हैं sports and the coverage of the HBL PSL 9 and it's time for hashtag Ask the Pavilion and to answer your questions I've got 4 fantastic gentlemen in the pavilion with me. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah-ul Haq and the great Wasim Akram. तो जनाब बाकायदा इसका सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए and let's start off. ये सवाल आया है जनाब DVD777 एट आपका हैंडल है DVD77700 DVD777 ने कम से कम 200 क्वेश्चन भेजे हैं बड़ा टाइम है आपके पास यार सर कुछ डेडिकेटेड फैन होंगे नहीं दो नहीं 200 ऑलराइट कुछ सवाल इनका है कि प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन टू हफीज भाई हफीज भाई व्हाई बाबर एंड रिजवान हैवंट बीन गिवन रेस्ट इन न्यूजीलैंड सीरीज वुडंट बी बेटर टू ट्राई यंगर प्लेयर्स एंड गिव कॉन्फिडेंस टू देम ऑन देयर नंबर व्हाई इज देयर हेजिटेशन इन ड्रॉपिंग बोथ ऑफ देम देखिए कोई हेजिटेशन नहीं थी देयर वाज अ प्लान लेकिन क्योंकि सीरीज़ ऐसे चलती गई हमारे जो कप्तान थे ही वांटेड टू कंटिन्यू विद दोस 2 सीनियर प्लेयर्स क्योंकि हम मुश्किल कंडीशन में खेल रहे थे तो आई थिंक कोई एक बंदा उसका डिसीजन नहीं लेता सब ने मिलकर डिसीजन लिया और यंगस्टर्स को भी हमने मौका दिया साइम अयूब को खिलाया अब्बास को खिलाया आमिर जमाल खेले उस सीरीज़ के अंदर तो वी वांटेड टू कंटिन्यू लाइक उसामा अभी वो जो है वो सीरीज़ खेले वो वाली तो इस तरह बहुत से लोगों को आगे भी हमने खिलाना था लेकिन जो भी खेले आई थिंक कि वो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए खिलाया गया एंड दे विल कंटिन्यू प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला So there is this this I think this feeling people think कि शायद आप लोगों का वो नहीं है आई थिंक जो चल रहा होता है सिलसिला उसी के अंदर आपको ऑपरेट करना होता है जिस तरह चीज़ें सारी की सारी चल रही होती है आई होप यू गॉट योर आंसर लव द ऑलराइट जनाब अंजुम तैमूर आपका सवाल हाय एवरीवन लव द गेम लव द पवेलियन एंड लव यू गाइस थैंक यू वेरी मच अंजुम आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल द पैनलिस्ट डिड यू गाइस एवर हैव अ सिचुएशन और फेज व्हेन यू वांटेड टू क्विट द गेम एंड व्हाट डिड यू डू टू कम बैक फ्रॉम दैट माइंडसेट फ्रॉम अंजुम तैमूर जी वसीम क्या कोई आप सबसे उन्होंने सवाल पूछा है पैनलिस्ट से कि कोई ऐसा टाइम आपके करियर में आया कि जब आपका दिल चाहा कि आप गेम छोड़ दें दोबारा कभी ना खेलें लेकिन फिर आपने अपने आप को किस तरह वापस मोटिवेट किया खेलने के लिए आई सपोज 90s में काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए थे ऑफ द फील्ड मोस्टली नॉट ऑन द फील्ड क्रिकेट में हार जीत तो होती रहती है ट्रस्ट था लॉयल्टी नहीं थी दोस्तों की डिसअपॉइंट भी हुआ था 97 96 में कि बस छोड़ दूँ बट देन आई रियलाइज आई ओनली नो वन थिंग एंड दैट इज़ हाउ टू प्ले क्रिकेट So why would I leave the thing I know? So luckily I stayed with it, thank God I did, and realized ज़िंदगी में ups and down आते रहते हैं drastic decision से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको. Right. You guys आपका कभी ऐसा फेज आया? ज़रूर आया. काफ़ी दफ़ा मैं काफ़ी मैंने 2-3 दफ़ा तो आया लेकिन मैं उसको टाइम मेंशन नहीं करूँगा लेकिन उसमें फिर आपके जो राउंड लोग होते हैं ना क्योंकि एक हीट ऑफ द मोमेंट तो आप ये डिसाइड करते हैं लेकिन फिर आप थोड़ा सा अगर टाइम लें काम डाउन हो और आपके राउंड जो वेल विशेस होते हैं आपको वो बेहतर मशवरा देते हैं थोड़ा सा आप कूल डाउन होते हैं तो आप फिर यही सोचते हैं कि यार मैंने इतनी अर्सा क्रिकेट में मेहनत की है और आई स्टिल हैव इट इन मी सो आई कैन स्टिल कंट्रीब्यूट एंड एक्सेल इन माई करियर फर्दर तो वो फिर आप खेलते हैं जो आखिरी था उसमें मैंने फिर आने के मशवरे में दिए भी कि कंटिन्यू करो लेकिन फिर मैंने कहा
दैट्स इट। ऑलराइट, फॉर यू? जी, ग्राउंड में तो नहीं, ऑब्वियसली दैट वाज माय पैशन टू प्ले क्रिकेट, लेकिन ऑफ द फील्ड कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसमें मुझे लगा कि शायद मैं मिसफिट हूँ इस सिस्टम के अंदर, तो मुझे लगा कि मुझे छोड़ देनी चाहिए क्रिकेट। अगर मेरी ईमानदारी के ऊपर कुछ ऐसे फैसले लिए जाएँ जो मुझे ठीक नहीं लगे पाकिस्तान के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान खेलना। फिर मुझे मेरे जो सराउंडिंग के लोग थे उनसे बात हुई, और स्पेशली वाइफ ने इसको बहुत ज़्यादा मुझे एक किस्म की एडवाइस की कि आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, यू शुड कंटिन्यू प्लेइंग फॉर पाकिस्तान पॉजिटिवली, व्हाई यू क्विटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द गेम, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद मोइन साहब ने जवाब दे दिया। भी बताना है अपना 2010 में जब इंग्लैंड सीरीज़ के लिए टीम अनाउंस हुई तो मैं और यूनुस खान 35 प्लेयर्स में नहीं थे। इनिशियली जो स्क्वाड अनाउंस हुआ तो दैट वाज द टाइम जब फील हुआ कि यार नाउ इट्स टाइम, अगर 35 में नहीं है इस स्टेज पे हम, तो इट मीन्स कि दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू बेसिकली कंसिडर अस। तो थोड़ी देर के लिए फील हुआ, बट अगेन जब आप थोड़ा बैठते हैं सोचते हैं तो उसके बाद फिर आप जो आपने बात की कि व्हाट एल्स टू डू, आप उस टाइम पे खेल रहे होते हैं क्रिकेट। एट दैट टाइम आई वाज 36, परफॉर्मेंस भी कर रहा था नीचे डोमेस्टिक में, सो आई थॉट के जस्ट कंटिन्यू, बिकेम कैप्टन आफ्टर दैट, सो रेस्ट फिर I think 7 years enjoyed the cricket. Yeah, you did. And how? A question, Mohammad Moin. How can Qalandars categorize Jahandad as their find of the tournament and not let him bat and bowl properly for the last 2 games? Wow, good question there. That makes sense. Yeah. I mean, if you claim that he's your you guys follow Lahore Qalandars management interviews left, right and center. उनके पास कोई ना कोई हर साल, ओके इस साल उनके 4 मैच आखिरी ओवर में ख़त्म हुए। आई कैन अंडरस्टैंड इट कैन हैपन टू एनी टीम, आप क्वालिफाई ना करो, बट उनके जो कोट्स आते हैं वो मज़ेदार होते हैं, उसके बगैर मज़ा नहीं आता PSL का। उनको कोई रैंडम कोट ना आए तो उनके कोच का या उनके ओनर्स का। हाँ, वो somehow it seems like they always have an answer for every question that you might ask. Right, जनाब, AK8722 आपका X handle है, AK8722. Every PSL we see Shaheen get emotional. Same happened again today and costed Lahore Qalandars. Surely someone on the field needs to calm him down. It is time to be worried about his potentially brain-dead decisions costing us in the World Cup. Right, Ji, who'd like to take that? Misbah? आई थिंक सीखना तो है उसने ये चीज़, और ऑब्वियसली द मैनेजमेंट एंड मे बी रिजवान एज अ वाइस कैप्टन इन T20, सो उसको थोड़ा सा रोल प्ले करना पड़ेगा इसमें। फ्रस्ट्रेशन होती है आपकी टीम अगर ऐसा परफॉर्म कर रही हो, चैम्पियन हो 2 टाइम के, और फिर बिल्कुल कोई चीज़ काम ना कर रही हो, तो फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली आती है, बट दिस इज़ द नेम ऑफ द गेम। आपको कंट्रोल करना है। अगर आपने जिसने डिसीजन लेने हैं वो ही अगर गुस्सा करेगा तो विदाउट काम हेड आपके लिए बड़ा मुश्किल है। आप डिसीजन आपने काम रहना। गॉड कैप्टनसी ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट T20 2 साल से 3 साल से लाहौर की कर रहा है, 2 दफ़ा जीते हैं, बट दिस nobody can teach him. This only will come with experience, and he should realize one thing, Misbah, in my opinion, कि stick to cricket. क्रिकेट की बस डिसीजन करो। अगर तुम फील्डिंग कर रहे हो, बैटिंग, बॉलिंग, वेल डन, बैड लक, स्टॉप आर्गिंग विद अंपायर्स। देयर आर 4 अंपायर्स, देयर 28-32 कैमरास, दे आर डूइंग देयर जॉब। अब जैसे वो कैच उसने किया है व्हाट्स हिज नेम, फखर ने, जब हमने देखा है रीप्ले में, उस वक्त तो नेकेड आइज से लगे पकड़ा है, रीप्ले में देखे कि 2 इंच पीछे लगा उसके, देन ही वाज स्टिल आर्गिंग विद अंपायर के नहीं वो उस अंपायर का डिसीजन है, वो ऊपर से 3rd अंपायर ने दिया। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ों से क्या होता है, आपकी अननेसेसरी जो टेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है, और फोकस जिस चीज़ पे कर रहे हैं उस पर नहीं रहता आपका फोकस। सॉरी, आप कंटिन्यू। ठीक है, नहीं इसमें देखिए, जब आप पाकिस्तान के कप्तान बन जाते हैं ना, और उसके साथ फिर आपको जब डोमेस्टिक लेवल पे फेलियर्स आना शुरू होते हैं या PSL में, तो फिर आप ऑल ऑफ अ सडन फील करना शुरू हो जाते हो कि यार मेरे ऊपर स्क्रूटनी ज़्यादा होगी, मेरे पे क्रिटिसिज्म अब ज़्यादा होगा। अब आपको इसका आदी होना है, क्योंकि ये तो अब होगा आपके साथ, क्योंकि अब आप पाकिस्तान टीम के साथ कैप्टन हैं। अब जहाँ भी कप्तानी करेंगे आपको लोग देख रहे होंगे। पहले आप सिर्फ लाहौर कलंदर के कैप्टन थे, अब लोग आपको दूसरे तरीके से देंगे। तो टेक इट ईजी, कीप इट सिंपल। जैसे वसीम भाई ने कहा कि इट्स ऑलराइट, गेम में जीत हार होती है, अच्छी बुरी परफॉर्मेंस होती है, बट डोंट गेट। आप सिर्फ फील्ड पे कप्तानी करो। ओके, गो अहेड। आप फील्ड पे कप्तानी करो, बाकी आपके पास पूरी टीम है। जी जी, मैनेजर, कोचेस,
एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्रैक्टिसेस। वो जो आपको बताएं इतने टाइम पे आना, इतने टाइम पे आप पहुंच जाओ। जितना लेस अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखोगे क्रिकेट के अलावा, इट्स बेटर। इट्स अभी से वो इसको ट्रेनिंग खुद करनी चाहिए अपनी। ऑलराइट जनाब, ये सवाल आया चुके अगेन ये शाहीन के हवाले से। ये रोहिन मेहता आपका एक्स हैंडल है, रोहिन _ मेहता 335। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सेइंग जेंटलमैन, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल 5 of you in the pavilion. You have made it a quintessential watch for all of us cricket lovers, even on the other side of the border. I'm a regular viewer of the pavilion from New Delhi. My question to Wasim Akram specifically, that Shaheen Shah Afridi seems to be bowling similar kind of deliveries in the death overs, is either a slow cutter or a round the wicket full delivery coming into the wickets. Shouldn't he evolve and develop more? Yeah, we should. I've been telling him from last 2-3 years कि आप सबको पता है कि जब तुम स्लो बॉल करते हो तुम ये लेग कटर करते हो। Right. मैंने अब इसको सीखना पड़ेगा ये बैक ऑफ द हैंड जो करना है आपने स्लो बॉल, स्पेशली लेफ्ट आर्मर को। लेफ्ट आर्मर से ये दूर जाएगा तो वो क्रॉस नहीं मार पाएगा। सज्जे के खिलाफ ठीक है, बस सज्जा भी अब तैयार है इसके लिए कि ये करेगा तो मैं बैक फुट पे हटके इसको इधर चौका दूंगा। सो येस, आई एग्री विद यू, ही शुड एज अ बॉलर हैज टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड आई हैव अ क्वेश्चन नाउ, वेरी इंटरेस्टिंग वन। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अब्बास बाबर। उनका क्वेश्चन है फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ कराची किंग्स। वाह बास, इतनी तमीज़ यार, आदाब। What was the real reason of Karachi's victory today? Was it because Hafiz sir picked Lahore or because Karachi played without Nawaz? Me. Let me there. Nawaz drop, Hafiz. इधर ले आए। Hafiz picked Lahore. That's a very good. That's a वो कंप्लेन और प्रोटेस्ट किया बाकी तमाम टीमों ने। हाँ, तमाम टीमों ने कि ड्राफ्ट में वो बैठे कराची ने एक और प्लेयर ऐड कर लिया अपने स्क्वाड में, विदाउट वो ड्राफ्ट में भी नहीं थे। वाह जी वाह, ड्राफ्ट में भी नहीं थे, उनको किसी ने चूज ही नहीं किया। Alright, we have a lot. I'm so glad, you know, all of a sudden we're getting more and more questions every day in Ask the Pavilion, and I have a lot more questions, and they're just constantly coming in as I'm scrolling down. These are just the Ask the Pavilion questions that are coming in. So we appreciate it, but we are limited on time. And Skip, do you want to ask a few more questions, or should we just call it a day because double-headed tomorrow? Yeah, we do. Super Sunday. Yeah, फिर सुपर आ गई। वो सुपर वेडनेसडे भी तो है ऐसी। सुपर वेडनेसडे पहले एक्चुअली सुपर वेडनेसडे वो जबरदस्ती, सो इट वाज अ सुपरदस्ती वेडनेसडे। या तुन के सुपरदस्ती वेडनेसडे था, वो सुपरदस्ती वेडनेसडे था, और कल जो है वो हमारा एक्चुअली सुपर संडे है। विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक हियर, बट व्हेन वी कम बैक, ओह देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स वी वांट टू शेयर विद यू। डोंट गो अवे। Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports, our continued coverage of the HBL PSL 9. With me, I've got the spectacular cricketing minds here who've just been so good throughout this journey. Azhar Ali, Mohammad Hafiz, Misbah ul Haq and the great Wasim Akram. और आइए दोस्तों, इन चारों ने, आपको पता है कि हमने जब ये शुरू किया था PSL, तो तब से हम इनकी predictions देते हैं। वो expert predictions प्री मैच में एक हमारा सेगमेंट है जहाँ पे हमारे experts जो हैं वो अपने expert analysis को मद्देनजर रखते हुए कि टीमें कैसी हैं, टॉस के बाद सूरत हाल कैसी है और क्या हो सकता है उस दिन, ये फिर टीम चूज करते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, और फिर उसकी बुनियाद पर हम इनको पॉइंट्स देते हैं। तो आइए जरा लीडर बोर्ड पे नजर डालते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। इस वक्त लीडर बोर्ड की सूरत हाल यूं है कि मिसबाह उल हक जो है वो वाह रवा दवा है 18 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल नंबर 1 पे। उसके बाद अजहर अली उनके पीछे ट्रेल कर रहे हैं 14 पॉइंट्स के साथ। वसीम अकरम है 13 पॉइंट के साथ। और दोस्तों मोहम्मद हफीज़ की कहानी कुछ ऐसे ही है कि पहले लाहौर कलंदर्स इनको ले डूबी और अब ये लाहौर कलंदर्स को ले डूबे हैं। ये मोहम्मद हफीज़ की कहानी है। सब टीमों को ले डूबे, लाहौर कलंदर इनको ले डूबी और ये अब बाकी सबको ले डूबे। ये तो क्लियर हो गया ना कि हम बैट पे सबको ले डूबे। जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछ दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ और डेथ का ये क्वेश्चन। किसी ने बड़ा सोच के ये क्वेश्चन पूछा है। उनका नाम उनका नाम है फहद। अब उनका जो हैंडल है फहद FA 800 नंबर है नालो दे। अच्छा, उनका क्वेश्चन है, हेलो एवरीवन, आई रियली लव योर शो, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम एवरीवनस कन्वर्सेशंस। फखर भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये ए स्पोर्ट्स का बैच कहाँ से मिलेगा? ये जो ही खत्म होता है PSL, हम आप अपना जो है वो एड्रेस भेज दें। ए स्पोर्ट्स का एक्स हैंडल है, उस पर आप अपना एड्रेस भेज दें, हम आपको भिजवा देंगे। ठीक है, ये वाला जो बैच है ना, ये चाहिए।
एक चीज है वैसे जी, माइंड ना करना। नहीं मैं नहीं करता। और कराची किंग्स का नहीं मांगा बैच, मांगा ए स्पोर्ट्स का। कराची का मेरा नहीं ख्याल बैच है, उसकी टी शर्ट है जो भी है, लेकिन कुछ नहीं मांगा कराची किंग्स का उन्होंने, बैच उन्होंने ए स्पोर्ट्स का मांगा। फाइनल में जब Because it doesn't matter who wins in the HBL PSL 9, one thing is for sure that the Pavilion and A Sports have definitely almost won। खत्म नहीं हुआ है। हम सब की तरफ से एक रिक्वेस्ट है जी कि आज का पॉइंट हफीज भाई को दिया जाए। नहीं, I will earn my points। नहीं, आपकी तरफ से नहीं है। नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं। किसकी तरफ से? वो देखो कितना बिजी चल रहा है। राइट दोस्तों, कल एक तवील दिन है आप लोगों के साथ हमारा, और कल 2 मुकाबले। आइए जरा स्क्रीन पे नजर डालते हैं कौन से 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला दोस्तों आपकी खिदमत में रावलपिंडी से आएगा। बराह रास्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला और टाकरा है मुल्तान सुल्तान के साथ। टेबल टॉपर्स हैं, ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं मुल्तान सुल्तान। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो डेस्परेट है इस वक्त अपने 2 पॉइंट्स के लिए। कल ये इनका आखिरी मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, अगर ये नहीं जीतते तो ये अपनी इसी पोजीशन पे रह जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड दूसरा मुकाबला दोस्तों कल आपकी खिदमत में शाम 7 बजे बराह रास्त कराची स्टेडियम से, और वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। एक दफा फिर आमने सामने होंगे। इट्स गॉट टू बी सीन हु विंस दिस गेम, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर भी अब बहुत प्रेशर आ गया सिंस कराची किंग्स हैव वन देयर गेम टुडे। बोथ टीम्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, अंडर प्रेशर फॉर दोज रिमेनिंग 2 क्वालिफाइंग स्पॉट्स, एंड कराची किंग्स इज स्टिल इन कंटेंशन। हम आपकी खिदमत में दोपहर 12 बजे हाजिर होंगे इसी जगह पर, इसी पेविलियन में, इसी चैनल पे, और एंड देन विल गो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। विद दैट आई थिंक इट्स टाइम टू कॉल इट एन इवनिंग। थैंक यू अजहर for your outstanding input, and especially doing the packages. Thank you. It's just been fantastic. ज़्यादा भरोसा न करें मेरे नहीं, बहुत अच्छा आपने, खास तौर पे मास्टर ब्लास्टर आप बहुत अच्छा करते हैं, उस पर हमें बड़ी जो है वो हुई है। अब तो ठेठ पे ठेठी मार रहे हैं। नहीं, मैं खत्म कर रहा पाया, मैं खत्म कर दो। आई एम वाइंडिंग डाउन द शो बॉस। Okay, then wind it down. With on my own pace. मोहम्मद हफीज, थैंक यू वेरी मच, ट्रूली अप्रिशिएट इट। आप जिस किस्म की प्रेडिक्शंस दे के जो टीमों के साथ कर रहे हैं, उस अल्लाह ही पूछेगा। कराची को बचा लिया आपने। कराची को बचा लिया है आपने, और अल्लाह ही पूछेगा आपको। But thank you so much, It's wonderful to have you here in the pavilion. Misbah, thank you very much, and hope I get to enjoy more meals with you, right? And सदर कराची किंग्स, सदर ए स्पोर्ट्स, आपको आज बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सेलिब्रेट करें, हैप्पी, बेहतरीन आपकी टीम ने आज परफॉर्मेंस दी है। एब्सोल्युटली। और हम दुआगो रहेंगे कि आपको मजीद कामयाबी मिले और आपकी टीम जो है वो प्लेऑफ्स में जाए। थैंक यू। ऑलराइट सर, थैंक यू। विद दैट वसीम, यू हैव अ गुड इवनिंग्स रेस्ट। वी आर गोइंग टू बी बैक हियर एट 12 noon। तो तब तक के लिए आज तो बनता है बॉस कि फिद्दी फुल चुने के फिद्दी टी करे के फिद्दी फुल चुने। गुड नाइट।